wasn't a particular doubt. How exactly does black body radiation take place, ma'am? That It is not a radiation. See, it is an hypothetical body in which we assume that whatever energy it will absorb, same amount of energy it will emit. मतलब ऐसा होता है ना कि ऐसा जरूरी नहीं होता जितना आप absorb करते हो उतना ही emit करते हो. ठीक है, the food you eat, it is not necessarily ना कि उसको तुम पूरा का पूरा emit out कर दोगे. ठीक है, so वही चीज है वहां पर वो, लेकिन एक ऐसी हाइपोथेटिकल बॉडी होती है जो जितना अब्सॉर्ब करती है उतना ही एमिट कर देती है. Is it fine now? Yes, ma'am. Ma'am, in the book there was a graph for black body Yes, radiation. Can you explain You that? don't have to do it. You will do it in physics class 12th. Is it fine? Ma'am, so they won't be asked in the school No. exams also. Basically, they can ask you the definition. That's it. Okay, ma'am. Not So more the than that. pattern in the school examination would be as the same as that of the revision paper, like more of the theoretical based question, that was subjective. Yes. And for more better information, please just talk to your some like senior or teachers, because like see, I am not very much pro with the school pattern. I can help you out, but not very much pro in that. Okay, we can help you out for competitive, that I am pro in, but school का थोड़ा सा ज़्यादा idea नहीं है मेरे को. ठीक है, but whatever last year I have seen was totally theoretical based. Is it fine? Yes, ma'am. ठीक है, so we are not done yet, but still you have done these type of questions. That's very good. That means you people are really working hard जो तुम इस तरीके के doubts लेके आ रहे हो. So see, if you certain time happen to get this type of question, जैसे एक ये दिया हुआ है, the Schrodinger wave equation. अगर कभी भी ऐसा गंदा सा इक्वेशन आ जाता है तो अपने को कैसे करना है? फॉर 2s ऑर्बिटल, ठीक है, किसी भी ऑर्बिटल के लिए दिया हुआ है, फिर एक गंदा सा इक्वेशन दे देते हैं. साई रिप्रेजेंट्स द ट्रैजेक्टरी, और ये 2s का मतलब क्या हो गया? 2s सबशेल के लिए रिप्रेजेंट कर रहा है. इट इज 4 पाई टू द पावर हाफ z अपॉन 2a नॉट into 2 minus z2 minus zr upon a naught, and then e to the power please can you send me your names also along with your doubts, so thoda sa ek idea rehta hai how many people are asking the doubts in the class. Please send me your name also, just message me the name. That's what I mean to say. Can you message me your name जिसका भी doubt है? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. Okay, it helps us to track the students who are really working hard. That's what we want. I wanted. So just send me your name. क्योंकि virtual class है ना, तो इसलिए थोड़ा सा difficulty हो जाता है. So now it is given as e to the power. What is next? 1 minute. E to the power minus zr up e to the power minus. Okay, thank you. ZR upon 2a naught. ठीक है. Now they are telling you इस question में और भी information दिया हुआ है. It has a radial node. It has a node at r is equal to r naught. अब r is equal to r naught दिया हुआ है. So what is this node will be called as? ये कौन सी node होगी? R is equal to a naught. Which type of node? Which type of node they are talking about? Radial node. Radial node. Okay, so we have to find the relationship between r and a naught. A naught stands for you can say a naught ये दिया हुआ है question में, for hydrogen atom. Okay, ठीक है. And what will happen if r becomes greater than r naught? If r is becoming greater than r naught, then what will happen? तो ये अपने को theoretically question को आंसर करना है. What will happen?
ठीक है, तो वैसे इस तरीके के क्वेश्चंस तो नहीं आते हैं बिकॉज अब हमारा सब्जेक्टिव नहीं होता है, ऑब्जेक्टिव होता है, बट स्टिल वी विल डू इट. सो सी, अगर कभी भी क्वेश्चन आता है नोड के लिए, व्हाट इज अ नोड? व्हाट इज अ नोड? व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ नोड? Ma'am, the Ma'am, place it where the is electron is case there least is likely to be no found. the probability of finding the electron is 0. And how do we represent probability या trajectory? By psi square. Psi. Least So square. psi is equal to क्या हो जाएगा? Don't you think it will become equal to 0 at node? Yes, ma'am. ठीक है, तो जब भी ऐसा कोई कभी भी क्वेश्चन आता है ना, तो अपने को क्या करना होता है? psi is equal to 0 करना होगा. ठीक है, now what is the value of psi? Psi is equal to, एक टर्म है इसमें 1/4 pi to the power 1/2. Can this be can this be 0? This is a No, constant value. This cannot be 0. Now tell me z upon 2a0. Can this be 0? Yes, ma'am. कैसे हो सकता है बेटा? a0 is the radius. Can this an atomic number कभी 0 हो सकता है क्या? Yes, ma'am. Atomic No, number ma'am. कभी 0 हो सकता है? नहीं हो सकता ना. Then can this term be 0? Again it is containing atomic number, so ये भी 0 नहीं हो सकता. ठीक है, सो एक ये टर्म है, ये टर्म है, ये अगर 0 हो जाए, ये अगर 0 हो जाए तो साई की चांसेस है ना, क्योंकि एनी टर्म इन दिस विल बी 0 विल मेक साई 0. कैन यू फॉलो दिस? Yes, ma'am. ठीक है, तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो एक ऐसा टर्म ढूंढना जो जिसको हम 0 कर सकते हैं. ठीक है, सो दिस विल बी equal to 0. If this is equal to 0, can you give me the relationship between a naught and r? Can we find a relationship between a naught and r? Yes, ma'am. Can I write 2a naught upon z is equal to r? Is it fine? Is it Yes, fine? ma'am. ठीक है, so we have to find a relationship between r and a naught for hydrogen. So for hydrogen means what? Z is going to be equal to 1. That means r is equal to 2 times of a naught. तो node कहाँ पे मिलेगी? 2 times of first radius के difference पे मिलेगी. Is it fine now? Yes, ma'am. ठीक है, तो अगर ऐसा कभी भी कोई क्वेश्चन आता है तो तुम्हें Ma'am, उस, हाँ, excuse me, ma'am. यस, Ma'am, what is A naught over here? व्हाट? ए नॉट इज सम नोटेशन. मेरे हिसाब से Ma'am, तो वो what is- फर्स्ट ऑर्बिट होना चाहिए. कोई कांस्टेंट है ए नॉट. जनरली ए नॉट इज यूज्ड टू रिप्रेजेंट द फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ फर्स्ट बोर्स ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन. Okay, ma'am. ठीक है, नाउ इज इट फाइन? Yes, ma'am. ठीक है, नाउ दे आर टेलिंग यू यू हैव द नोड एट आर नॉट. तो आर नॉट की वैल्यू क्या हो गई? अगर हम लोग उसके लिए बात करें तो आर नॉट की वैल्यू, नोड के लिए बात करें तो आर नॉट की वैल्यू क्या हो गई? इजंट इट 2 टाइम्स ऑफ ए नॉट? Yes, ma'am. ठीक है, सो नाउ यहाँ पर क्या करना है? जब इन्होंने सेकंड पार्ट पूछा है तो सेकंड पार्ट में क्या करना है? जहां जहां आर लिखा है वहां पे 2 टाइम्स ऑफ ए नॉट कर दो. जहां जहां भी आर लिखा है वहां पे 2 टाइम्स ऑफ ए नॉट कर दो. तो अब क्या हो जाएगा? साई का वैल्यू, साई का वैल्यू क्या हो जाएगा? इसको पुट करो. 4 पाई, क्या दिया हुआ था इक्वेशन? एक मिनट. 4 pi to the power half and then this will be z upon 2 a naught. अब यहाँ पे लिखा है 2 minus zr. zr की जगह क्या लिखना है? r की जगह क्या लिखना है बेटा? अभी अभी अब बताया. 2 आ r गई नॉट, r नॉट की वैल्यू कितनी आ गई है? 2 a naught. ठीक है, डिवाइडेड बाय क्या लिखा है? a naught. Okay, then over here we will have what? Next term is what? E to the power zr minus e to the power minus z into r. तो r की जगह फिर क्या लिखेंगे? 2a naught divided by 2a naught. and अगर supposing हाइड्रोजन एटम के लिए करें तो can I say z is equal to 1? Yes, ma'am. अब इसकी वैल्यूज जस्ट पुट कर दो तो इट विल बी व्हाट? 1/4 पाई टू द पावर हाफ. यहाँ पर क्या हो जाएगा? 1/2 a naught and then it will be what? 2 minus 2. Now see again, isn't it becoming 0? 2 minus 2 will be 0. So that means psi की वैल्यू 0 हो जाएगी कि नहीं? Yes, ma'am. At r naught.
and isn't it representing a node? Yes, ma'am. ठीक है, तो आफ्टर नोड दे आर सेइंग व्हाट इज हैपनिंग आफ्टर r becomes greater than r naught. तो जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ेगा क्या होता जाएगा? आफ्टर नोड also as r will increase what will happen? क्या साइन होता था? नेगेटिव हो जाएगा. Yes, what will happen? The probability of finding the electron will again, what will happen to the probability of finding the electron? Increase. It will start increasing and it will go to the maximum value. Can you follow it? Yes, ma'am. ये देखो, ये 1s होता था, ये 2s होता था, तो क्या होता था? नोड होने के बाद में इंक्रीज होती थी कि नहीं वैल्यू? Yes, ma'am. अब समझ में आ गया इस टाइप के क्वेश्चंस को कैसे करना है? Yes, ma'am. Happen to get to this question, how will you do it? Did you get it? Yes, ma'am. मैम समझ में नहीं आया, मतलब पूरा मैम समझ में नहीं आया. बेटा तुमको नोड निकालनी है. नोड कहाँ पे प्रेजेंट होती है? जब साई की वैल्यू 0 हो जाए. ये सारे टर्म्स जो है वो मल्टीप्लाइड है, तो ये टर्म 0 बनाने के लिए अगर इसमें से एक टर्म 0 हो जाए तो पूरे टर्म 0 हो जाएंगे कि नहीं? यस मैम. ठीक है, तो हमने क्या किया? 1/4 पाई कभी 0 हो सकता है, वो तो एक कांस्टेंट वैल्यू है. यस क्या मैम. वो कभी 0 हो सकता है? नहीं हो सकता. z/2a0 कभी 0 नहीं हो सकता क्योंकि z is also a constant and a0 is also a constant. It is representing the Bohr's radius. Can it be 0? कभी 0 बना सकते हो उसे? नो मैम. ठीक है, तो हमें सिर्फ एक एक्सप्रेशन मिला जिसको हम बोल सकते हैं कि उसकी वैल्यू 0 हो सकती है. दैट इज 2 - zr/a0. यस मैम. ठीक है, तो हमने उसमें से z और r और a0 की रिलेशनशिप निकाल दी. मतलब ये 0 होगा तो पूरा का पूरा ये 0 हो जाएगा. तो नोड पर यही एक कंडीशन हमें मिल रही है, तो उसके बेसिस पे r और a0 की वैल्यू निकाल ली. कैन यू फॉलो दिस थिंग? अगर तुम्हें ऐसी गंदी सी इक्वेशन दिखती है तो देख के डरना नहीं है. सिर्फ उसमें एक टर्म ऐसा ढूंढना है जिसको तुम 0 बना सको. आप कर पाओगे? बस इतनी सी शॉर्ट ट्रिक लगानी है. जो इतना गंदा क्वेश्चन देखने में लग रहा था, बट उसको करने में कुछ नहीं है. क्या करना है? सिर्फ एक ऐसा टर्म ढूंढना है जिसको हम 0 कर सकें. अब समझ में आ गई पूरी कहानी? यस मैम. यस मैम. क्यों करना है अब वो भी समझ में आ गया. यस मैम. ठीक है, तो बस इतनी ही कहानी होती है, हमें उसको 0 बनाना होता है. इज इट फाइन नाउ? Yes, ma'am. ठीक है, ओके. देन देयर इज अनदर क्वेश्चन जिसमें डीजेनरेसी आ रही है. डीजेनरेसी में बाद में कराऊंगी तुम्हें, अभी नहीं करा रही हूँ क्योंकि थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाएगा. स्कूल एग्जाम थोड़ा प्रायोरिटी पे ले रहे हैं, तो स्कूल एग्जाम के लिए हमारा जो बचा रह गया है वो क्या है? what is left is photoelectric effect, I think. Yes, ma'am. We had started it off last time. Yes, we started a bit in the last class. Okay, so we will continue that. We'll try to finish it, and फिर last एक चीज रह जाएगी, that is called as degeneracy. वो हम लोग बाद में कर लेंगे. Is it fine? Okay, ma'am. और कुछ? तो 2 ही डाउट्स आए थे मेरे पास. एक डीजेनरेसी से रिलेटेड था जो मैंने बोल दिया है, मैं बाद में कराती हूँ. उसके अलावा और कोई डाउट है? No, ma'am. Ma'am, what exactly be the pattern of school examination? You have been given a dummy test or a revision test. Just check कर लो उसे, देख लो उसमें से. Ma'am, you mean the revision sheet? Yes. मैम तो मतलब ऐसे टाइप के क्वेश्चन आएंगे स्कूल के एग्जामिनेशन में? कैसे टाइप के? मैम यही वाला जो subjective. दिया हुआ था. हाँ, तो सब्जेक्टिव ही तो आएंगे बेटा, वहाँ ऑब्जेक्टिव थोड़ी ना होते हैं. Ma'am, talking about this particular question, like Schrödinger's equation for They 2s. can. How can I comment on that part? So, ma'am, NCERT will be the priority, right? Yes, obviously by syllabus तो NCERT है, बट बात वही चीज है कि जैसे मैंने तुम्हें कई बार बोला है, वहाँ नोट्स एक लाइन में लिखा हुआ है, मुझे एक्सप्लेन करने में 2 क्लासेस लग गए तुमको. तो तुम कह सकते हो NCERT सिलेबस है, लेकिन उसके अंदर की चीजें तो समझाने में टाइम लग ही जाता है ना. Yes, ma'am. या तो वर्ड बाय वर्ड NCERT लर्न कर सको, और नहीं कर सकते तो उसका एक्सप्लेनेशन पार्ट, उसका बैकग्राउंड की जरूरत है. उसके लिए हमें तो थोड़ा सा टाइम लग ही जाता है करने में.
focus more on definitions, laws of electronic configuration. उससे जरूर एक क्वेश्चन आ सकता है definitions पे, postulates पे, drawbacks पे, उन सब से तो क्वेश्चन आने ही आने हैं, जो पॉइंट्स दिए हुए हैं ना उनसे तो क्वेश्चन आएगा ही आएगा, ठीक है। फिर कंसंट्रेशन टर्म्स हो गए, उनसे क्वेश्चंस आएंगे, कन्वर्जन ऑफ कंसंट्रेशन टर्म्स हो गए, उनसे क्वेश्चन आ सकते हैं, स्टोइकियोमेट्री से क्वेश्चंस आ सकते हैं, ऐसे ही क्वेश्चंस होंगे। अभी क्लियर है? Yes, ma'am. ठीक है, चलो अभी हमारे को हम लोग कर रहे And थे ma'am, what is thermal equilibrium? बेटा, अगर दो बॉडीज कांटेक्ट में रखी जाती है, मतलब आइस एंड वाटर को कांटेक्ट में रखते हो तो थोड़ी देर में सब दोनों का टेम्परेचर सेम हो जाता है या नहीं हो जाता है? Yes, ma'am. So what does it mean? This is thermal equilibrium. The heat transferred is same. Heat gained and heat loss becomes the same. Further heat transfer stop हो जाएगा. Thermal stands for heat. So ma'am, both are emitting and absorbing energy, right? Yes, one is emitting and another is absorbing till they don't become to the same temperature. Okay. Okay, ma'am. Okay. Okay. So now we will go towards this. Yes, we were doing with photoelectric effect. Photoelectric effect. Okay. Now what is photoelectric effect? That's what we have to do. So what is it? When a metal surface is exposed to a beam of light of particular frequency, ठीक है, और वेवलेंथ कुछ भी कह सकते हो, इलेक्ट्रॉन्स आर एजेक्टेड। अगर कभी कभी ऐसा होता है कि इलेक्ट्रॉन, जब हम लाइट डालते हैं तो इलेक्ट्रॉन्स आर इजेक्टेड। कहाँ से मिलेंगे इलेक्ट्रॉन्स, किसके पास होते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन्स? सो इट इज फ्रॉम द मेटल, from the surface of the metal. yes. So this phenomena is called as photoelectric effect. and जो इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स ejected, they are called as photoelectrons. and the current, इसकी वजह से करंट फ्लो होना स्टार्ट कर देते हैं, इसीलिए हम इसको बोलते हैं फोटो करंट, ठीक है। इलेक्ट्रॉन्स की वजह से करंट, फोटॉन्स की वजह से करंट फ्लो करना स्टार्ट होता है, सो दैट इज व्हाई वी कॉल इट एज फोटो करंट। Fine. So again, what is the way the apparatus is being made? So we have, you can say, a discharge tube. We have one, you can say, Could you please go to the previous slide once? yes, 1 minute. Is it fine? Yes, ma'am. Everyone? Yes, ma'am. Shall I move ahead? Yes, ma'am. Sure. So इसका जो सेटअप होता है पूरा इस वे में, तो उसमें क्या क्या होता है? We have, you know, we have like a discharge tube. Yes, a discharge tube. and क्योंकि discharge tube के बीच में कुछ नहीं होता है, मतलब like कोई वायर नहीं कनेक्टेड होता है, कुछ नहीं होता है, तो मतलब करंट तो नहीं फ्लो करना चाहिए, बट क्या होता है, आफ्टर सम लाइट इज इंसिडेंट ऑन इट, इट स्टार्ट शोइंग कि जो उसका वोल्टमीटर कनेक्टेड होता है, इट स्टार्ट शोइंग अस करंट। सो वी हैव अ डिस्चार्ज ट्यूब, इस तरीके से होता है,
ओके एंड यहाँ पे इलेक्ट्रोड्स कनेक्टेड होते हैं, वी आर कनेक्टिंग। अभी क्या होता है जब हम लोग कैथोड रे एक्सपेरिमेंट की बात करते हैं तब हम बहुत हाई वोल्टेज लगाते हैं इसके ऊपर, बहुत हाई वोल्टेज लगाते हैं 10,000 वोल्ट्स का, बट यहाँ पे जो वोल्टेज लगा है ना वो बिल्कुल नॉर्मल लगा है, नॉर्मल बैटरी लगी हुई है एंड सी द सर्किट इज इनकम्प्लीट। कैन यू सी द सर्किट इज इनकम्प्लीट? सो व्हेन वी अलाउ द लाइट टू पास ऑन इट, ठीक है, लाइट मीन्स फोटो इलेक्ट्रॉन्स, photons to pass on it, on this on the negative side of the terminal, what we observe is after some time अगर यहाँ पे एक bulb लगा हुआ है तो it will start glowing. So the question arises, how did it start glowing? हमने तो करंट दिया नहीं, सर्किट इनकम्प्लीट है, बैटरी जो है उसका वोल्टेज बहुत कम है, इतना तो सफिशिएंट नहीं था कि वो बल्ब ग्लो करना स्टार्ट करे, तो मतलब करंट ने फ्लो करना स्टार्ट कर दिया है। एंड हाउ डिड दिस happen? So इसके रीजन में हम लोगों को यही पता चला कि actually when light is incident or photons are incident on a metal surface, so what happens, the electrons get excited, they transfer their energies to the valence electrons and they get excited, and when they get excited what happens, that is a lush, तुमने देखा है ना metals में तुम बोलते हो lusher होता है, what is the reason for it? Again the same thing, जब लाइट उनके ऊपर पड़ती है तो इलेक्ट्रॉन्स एक्साइट हो जाते हैं और एक्साइट होकर के वो क्या करते हैं, दे कम टू दी हायर एनर्जी लेवल एंड व्हेन इट स्टॉप्स फॉलिंग ऑन देम दे गो बैक टू दी लोअर एनर्जी लेवल एंड दैट्स व्हाई दे अपीयर टू बी शाइनी। दे आर गुड कंडक्टर्स, व्हाई? बिकॉज उनके इलेक्ट्रॉन्स को निकालने के लिए बहुत कम एनर्जी की जरूरत पड़ती है। सो दे स्टार्ट flowing from this terminal to the positive terminal and the circuit gets complete and it starts showing us some voltage or the bulb starts glowing. Can you follow this much? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ठीक है। सो जो ये इलेक्ट्रॉन्स निकल के आए हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, फोटो इलेक्ट्रॉन्स, और इसकी वजह से जो करंट ऑब्जर्व हो रहा है उसको क्या बोलते हैं, फोटो करंट। इज इट फाइन? Yes, ma'am. ओके, सो व्हाट इज द ऑब्जर्वेशन आफ्टर वी डिड इट? सो ऑब्जर्वेशन इज, फिर हम क्या करते हैं, मतलब अलग अलग फ्रीक्वेंसी की लाइट और ये सब डालने की कोशिश करते हैं, तो उसके वे में हमें पता चलता है, मतलब ये जो करंट होता है वो बहुत चीजों पे डिपेंड कर रहा होता है। ओके, सो व्हाट इज द ऑब्जर्वेशन, दैट व्हेन photons have sufficient energy, हमेशा नहीं होता है, अभी नहीं करंट फ्लो कर रहा होता, जब हमारा नॉर्मल लाइट पड़ रहा होता है तब नहीं फ्लो करता, उसका रीजन क्या है, उसके पास इतनी एनर्जी होनी चाहिए कि वो उनको निकाल सके, हैज सफिशिएंट अमाउंट ऑफ एनर्जी, आयनाइजेशन पोटेंशियल होती है ना ये एनर्जी, टू रिमूव द इलेक्ट्रॉन, sufficient amount of energy strikes electron of the metal, transfer of energy takes place, transfer of energy, तो फोटोन अपनी एनर्जी जो है इलेक्ट्रॉन को दे देता है, takes place and the electron gets ejected from the metal surface, from metal surface. Can you follow the reason now? Okay, can you follow this? अब Yes. एक फोटोन कितने इलेक्ट्रॉन्स को एमिट करेगा, तो एक फोटोन भाई एक ही इलेक्ट्रॉन पे टकराता है, तो वन फोटोन विल एमिट हाउ मेनी, एक फोटोन एक इलेक्ट्रॉन को एमिट कराएगा, सो वन फोटोन ejects one electron. Can you follow this? Yes. ठीक है, तो अगर सपोजिंग उसके पास एक्स्ट्रा एनर्जी है, तो एक्स्ट्रा एनर्जी किस फॉर्म में यूज होती है, तो जो भी एनर्जी ऑफ फोटोन होती है पहले दो तरीके से यूज होती है, एक पहले किस तरीके से यूज हुई, उसके इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए, इजेक्ट कराने के लिए, और जो एक्स्ट्रा बचती है इट इज यूज्ड फॉर टू मेक द इलेक्ट्रॉन मूव एंड दैट इज कॉल्ड एज व्हाट, Kinetic energy. काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, मतलब अगर तुम्हारी एनर्जी ऑफ फोटोन जो है साई जो लिया है मैंने वैल्यू, ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड एज वर्क फंक्शन। व्हाट इज वर्क फंक्शन, द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव द इलेक्ट्रॉन, ओके, और यू कैन कॉल इट एज थ्रेशहोल्ड एनर्जी, बस इलेक्ट्रॉन गेट पे आकर के खड़ा हो जाएगा, चलेगा नहीं, ये वाली एनर्जी। तो अगर इलेक्ट्रॉन जो तुमने एनर्जी दी है फोटोन की वो इससे लेस होगी तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स एजेक्ट हो पाएंगे, No, ma'am. they will not be ejected.
ठीक है, Ma'am? 3 कर, हाँ. Ma'am, why, ma'am, here we have, why is psi known as the work function? वर्क कराने के लिए मिनिमम जो एनर्जी दी जाएगी उसको वर्क फंक्शन बोलते हैं. Okay, ma'am, okay. ठीक है. Ma'am, so this is actually the ionization potential. यस, इसको बाद में बोला गया था, बाद में डिस्कवर हुआ था. फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट वालों ने पहले इसको नाम दे दिया था वर्क फंक्शन. तो हम लोग भी उसी कन्वेंशन को फॉलो कर रहे हैं, या फिर ऐसे कह लो जो हमारी एनसीईआरटी बुक है ना वो ये इसी टर्म को यूज करती है. तो मुझे भी तुम्हें सारे टर्म से फेमिलियर कराना जरूरी हो जाता है. ओके, वरना तुम बोलोगे बाद में आकर के कि ये क्या टर्म है, आपने नहीं पढ़ा है, तो मुझे बताना पड़ेगा ना. इज इट फाइन नाउ? Yes, ma'am. Yes. Similarly, if you call it like if energy of the photon is equal to that of psi, ठीक है, तो उस टाइम पे क्या होगा, इलेक्ट्रॉन एजेक्ट तो होगा बट वो मूव नहीं करेगा. सो बट काइनेटिक एनर्जी विल बी हाउ मच? 0. कैन यू फॉलो दिस? वो निकल तो आएगा, गेट पे खड़ा है लेकिन चल नहीं पा रहा है. कैन यू फॉलो दिस? Yes, ma'am. ठीक है. एंड व्हेन द एनर्जी ऑफ द फोटोन comes greater than psi, ओके, जब उसका एनर्जी इससे भी ज्यादा हो जाएगा, देन क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन एजेक्ट भी होगा और मूव भी करेगा. तो अगर हमें करंट फ्लो कराना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, उसको ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी. किस एनर्जी से ज्यादा देनी पड़ेगी? Ma'am, the threshold energy. Yes, so this is our desired condition for the electron or for the photoelectric effect. Did you follow now? Yes, ma'am. Could you please go to the previous slide once? Ma'am, the photons which are incidenting on the cathode, then can the source of those photons be the visible light, the normal visible light which we see? What? Yes, they can be the normal visible light also, but depends करता है कि उस metal का work function कितना है. Okay, ma'am. Ma'am, the best metals for this are the group 1 metals, right? आरदी, जैसे टंगस्टन है, बेस्ट है, तभी तो उसको बल्ब में यूज कर रहे हो तुम. Isn't it? Yes, Good ma'am. conductors. And because in the NCERT, the examples of the metals that were given, ma'am, to observe this photoelectric effect. जिसके वर्क फंक्शन उनको पता थे उन्होंने वो लिखे हैं, सबके थोड़ी ना लिख दिए हैं. Ma'am, तो question frame करना था. all the metals that were used were part of the group 1 metal. Yes. That's why I asked. Yes, ma'am, it's fine now. Just a minute. Is it fine for now? Yes, ma'am. यहाँ तक चीजें समझ में आ गई. तो वर्क फंक्शन का बहुत मेजर रोल है, ये भी क्लियर हुआ. Has a very major role, and that is why कि हर टाइम, मतलब कभी कभी होता है ना हमें करंट सा फील होता है, कभी कभी होता है ना हमें कुछ टच करते हैं और हमें करंट फील कर जाता है. तो उसका रीजन ही क्या होता है, बाई हमारी टच करने से हमारी बॉडी उन्हें उतनी ज्यादा एनर्जी दे देती है कि फोटो इलेक्ट्रॉन्स उससे निकलना स्टार्ट कर जाते हैं. Sometimes it happens. So that's why when we get that sort of tingling sensation. Yes, the electricity starts flowing through our body. Okay, ma'am.